Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest EdTech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I've been teaching you UGC Net Paper 1. And I've already made 5 videos prior to this one covering the preceding units. And as you know, your examination is nearby, so you need to prep for your upcoming examination. And in this video, we'll talk about Unit 6 in particular, that is titled as Logical Reasoning. Right. So we'll talk about this. What are the important things in unit and how you have to prepare for this. So Unit 6 about the logical reasoning (LR). So basically, this is divided into two parts. First is that purely talks about reasoning, right? That includes practical questions. तो रीजनिंग की अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो इसमें दो पार्ट्स है. एक पार्ट जो आपके रीजनिंग बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करता है. द सेकेंड पार्ट इज बेस्ड अपॉन योर इंडियन लॉजिकल रीजनिंग राइट. सो इसमें क्या होता है बेसिकली इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत सारी इंडियन फिलोसफीज के बारे में बताया गया कि क्या क्या है. Or this also has become very important topic these days because reasoning, let's suppose you are able to cover up the practical question, the nuances, the way to prepare for all those questions, right? You can practice them, but you need to memorize Indian logical reasoning, right? So if you want to prepare for Indian logical reasoning, I have already made a video particularly on that, covering every important thing in Indian logical reasoning. So what you can do is check out Talent Blazer YouTube channel, right? So YouTube channel, you can easily find one of my live videos where I was covering Indian logical reasoning. In today's class, we will not be focusing upon Indian logical reasoning, we'll be focusing upon reasoning. This is also very important because you can get a mixed bag of this question, or either purely focused upon reasoning or either focused upon Indian logical reasoning. तो दोनों चीज पे आ सकता है. एक तो आप तो प्योरली आपसे रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपसे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर लक कि आपके सेट में कौन सा आता है. बट बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर फॉर नथिंग लेस बट JRF, राइट. हमारा टारगेट ही JRF है, तो हमें सारा का सारा कवर अप करना है. कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कुछ टॉपिक छोड़ के ही नहीं जाना जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाए और हम JRF मिस कर पाए. नेट नहीं, हमारा टारगेट ही JRF है, राइट. तो अगर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दिस हैज मल्टीपल टॉपिक्स. लास्ट इस पे यू कैन देयर इज ब्लड रिलेशन पूछा जाता है काफ़ी बार, और एनालॉजी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक्स, राइट. इनके बेस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड दीज आर नॉट पर्टिकुलर टू दिस एग्जामिनेशन. अगर आप इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट तो देन यू माइट बी नॉट अवेयर अबाउट इट. बट अगर आपको और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड एनालॉजी. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है, ज़रूरी है. For all those who are not from maths background or from prior reasoning background, उनके लिए थोड़ा difficult हो जाता है. और वहाँ पे what they usually do is that they just leave out those question, कहते हैं attempt करने से better है छोड़ दो, right. But आपके examination, because there is no negative marking, you have to be smart enough to make sure that you attempt all the questions given the time frame, राइट. तो आप उस पर टाइम लगा के थोड़ा स्पेंड करो एंड मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चन, राइट. तो ये आपके दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है. इसमें आपको कम से कम 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कम से कम रीजनिंग से. तो ये प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी है. प्रैक्टिस सेट के लिए भी एक टेक्निक है. मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई टेल यू अबाउट हाउ यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट फॉर योर रीजनिंग क्वेश्चंस एंड इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, राइट. तो ये पूरा जो यूनिट 6 है उसके रिलेटेड आपको कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, हर चीज़ जो पूरी अल्टीमेट चीज़ है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट दैट. एंड सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड, राइट. तो आपको पूरी एंड तक वीडियो देखनी है, मिस आउट नहीं करना है. इफ़ यू मिस आउट यू लूज आउट ऑन योर मार्क्स. अगर आप वो चीज़ मिस आउट कर दोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. इसलिए मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द एंड, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट the topic that we are going to cover is firstly is analogies, right. So firstly we'll discuss about what are the concept and the basics. तो एनालॉजी का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डेंस और सिमिलर आइटम्स. ये सिमिलर आइटम्स है, राइट. रेप्लिका नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, ठीक है. एग्जैक्ट सेम नहीं है. तो ये एक डिफरेंस है कि ये एग्जैक्ट सेम नहीं है. while we are talking about this, these are not exactly similar. एग्जैक्ट सेम नहीं है बट ये सिमिलर आइटम्स है, उसके जैसे ही है,
ठीक है, उसके जैसे ही एग्जैक्टली सिमिलर नहीं। तो उसमें हम वी यूज एनालॉजीज कंसेप्ट एंड बेसिक्स वहाँ पे। इसको वी हैव divided into three parts, just say the way you have to cover it, right? We'll talk about that. In other words, we can say similarity or similar relation. अगर हम बात करें, I hope this is visible. If this is not visible, I can write it over here. कि अगर हम बात करें, we can say similarity or similar relation. हम जो बात कर रहे हैं उसमें similarity और similar relation exist between the given subjects, right? गिवन सब्जेक्ट्स के बीच में एक सिमिलर रिलेशन होना चाहिए और एक सिमिलैरिटी, कुछ कुछ रिलेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रोसीड हेड, देन यू कैन predict the next one, right? The way we are asked, we are basically asked the next term, right? The missing term out, right? तो वो चीज़ है, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है इन द प्रीवियस आइटम जो पहले गिवन होता है, राइट? अगर इन दोनों के बीच में कुछ पैटर्न बन रहा है एंड दिस पैटर्न इज बीइंग फॉलोड इन दोनों के बीच में भी, यू हैव टू डिराइव इस पे क्या आएगा, इस स्पॉट पे क्या आएगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ देखते क्या क्या टाइप्स है। अब ये इसका पर्पस क्या है, देखो ये बिकॉज यू नीड टू नो व्हाई दिस इज इन योर सिलेबस। दीज आर द टेस्ट मेंट टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स ओवर ऑन नॉलेज, पावर ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक कंसाइसली एंड एक्यूरेटली। तो ये है क्यों एनालॉजी, ये बेसिकली why is this test included in your syllabus is first to test the candidates overall knowledge. If we are talking about numerical, so in numerical analogies we are basically comparing the numbers, we are we are covering वेराइटीज ऑफ नंबर्स, राइट? अब ये नंबर्स में वेराइटीज अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर करा है, लास्ट वीडियो में ही, कि आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये अपनी नॉलेज में ये सब नहीं पता, देन ऑब्वियसली देयर आर चांसेस दैट यू विल ब्लैंक आउट इन द एग्जामिनेशन। आपको नहीं पता होगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, सिंपल ऐसा। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको अल्फाबेटिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अल्फाबेटिक बेस्ड क्वेश्चन। तो आपसे वो बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहे हैं कि आप उनके बीच में एक पैटर्न बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, उन सब की प्रैक्टिस आज करेंगे। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, विल डिस्कस देम ईच ऑफ देम वन बाय वन, राइट? एंड एबिलिटी टू थिंक कंसाइसली एंड एक्यूरेटली, आपको सब सोच के समझ के यू नीड टू आंसर देम, राइट? तो एबिलिटी टू थिंक कंसाइसली एंड एक्यूरेटली, दैट इज द मेन criteria and the purpose of this test. Okay, there are three types of analogies. Just a second. There are three types of analogies. First one is number analogy. Okay, the one I was talking about, number analogy. Then the second one is letter analogy, the alphabetic word, alphabetic base, and the last one is word analogy. We'll talk about each one of them with the given example, and then we'll solve them so that you can get the idea about how these questions comes in your examination and how you have to attempt those, right? तो ये आपको attempt कैसे करना है, हर चीज इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ जाएगी। So as I said, not only the concept, also you will get a very big thing that will help you to crack this examination easily, and that is why I am saying you stick till the end. काफी बच्चे होते हैं इनिशियली थोड़ी वीडियो देखते हैं, देन दे एक्चुअली फेज आउट। नहीं, आपको फेज आउट नहीं करना, आपको पूरी वीडियो देखनी, तभी आप लर्निंग कर पाओगे। और इस टाइम पे बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर बाय, यू नीड टू बी एट दैट स्टेज कि अब सारे यूनिट्स यू नीड टू रिवाइज देम क्विकली। सो दीज आर ऑल दोज वीडियोज वेयर यू कैन रिवाइज the crux of all the units very easily, right? So we are talking about three types of analogy. First is number, second is letter, and last one is word analogy. Okay, so we'll talk about, now we're talking about the first one, number analogy. So in this, the candidates are asked to identify and point out relationships, similarities or difference and dissimilarities in a series or between group of numbers. In most of the cases, the relationship between the numbers in a given pairs can be one of the following. One number is a multiple of other, okay? One number is a square or square root of another. One number is a cube or cube root of other. And the last one, the two numbers can be consecutive, even, odd or prime numbers. तो ये जो सारी जो हम बात कर रहे हैं, about the number system,
नंबर सिस्टम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस आई हैव कवर्ड इन डिटेल इन माय लास्ट वीडियो अबाउट नंबर सिस्टम। और मैंने वहाँ पे बोला भी था टू ईच एंड एवरीवन हु हैज वॉच्ड दैट वीडियो दैट आपको स्क्वायर्स याद करने हैं टिल 31st नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। ये आपको याद करने ही करना है, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव एंड फॉर क्यूब एटलीस्ट 15 विदाउट remembering this, memorizing this, you won't be able to get that added advantage। आप वहाँ पे बैठ के मल्टीप्लाई करते रहोगे, ये मल्टीप्लाई करते रहोगे, और इससे होगा क्या, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, राइट। आपका और ये टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन में यही की है। आप कैसे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन, राइट। आपको 100 मार्क्स स्कोर करने नहीं, आपको कॉम्पिटिशन से भी आगे निकलना, राइट। कंपटीशन से आगे निकलने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जिससे जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, दैट यू हैव टू डू एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट अहेड। यहाँ पे आप जो टाइम सेव करोगे उसकी वजह से यू विल गेट एडेड एडवांटेज इन अदर क्वेश्चंस एज वेल। लेट्स सपोज आप यहाँ पे टाइम सेव कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दिस दिस दिस, instead you know the right answer, and then what you are doing, for solving this question very easily and very quickly, and then there is a lengthy question regarding passages in paper 1। अगर हम देखें पेपर 1 में passages से रिलेटेड भी एक लंबा क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप यूटिलाइजिंग योर टाइम, वहां पे आप अच्छे से टाइम लगा रहे हो, बिकॉज आपने यहाँ पे टाइम सेव कर लिया। बट अगर यहाँ पे अगर आप टाइम सेव नहीं कर पाते तो वहां पे भी आप बहुत जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ोगे, चक्कर में उस जल्दी के चक्कर में मे बी यू लूज आउट योर मार्क्स, राइट। तो ये आपको पिक भी करने होते हैं, व्हाट आर योर इजी टारगेट्स एंड वेयर यू कैन इजीली गेट गुड स्कोर एंड क्विकली, राइट। सो वो ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे यूनिट्स हैं। सो अगर हम नंबर एनालॉजी की अगर हम बात करें, तो द कैंडिडेट्स आर बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इन डिससिमिलैरिटीज इन सीरीज और बिटवीन ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो जो रिलेशनशिप ऑलरेडी गिवन होता है वो इट कुड बी आइडर द मल्टीपल, एक सीरीज में एक मल्टीपल हो सकता है कोई किसी का। और हम बात करते हैं कभी कभार स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फिर प्राइम नंबर्स के बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में। तो मैंने कहा अगर आपको नंबर सिस्टम पूरा अगर पढ़ना है, अगर आपका वीक एरिया है, बट इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस नंबर सिस्टम थरली, तो आपको तब अच्छे से आता होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन है, आई होप दिस इज विजिबल, अगर नहीं है विजिबल तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो यू नीड टू फाइंड द नेक्स्ट वन, 3, 6, 11 is given, you need to find the next answer, right, next series। I hope this one is visible, if this isn't, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक 3 है, एक then there is 6 है, then there is 11 and you need to find the next one। अब इसमें what we can derive, आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर इनका हम डिफरेंस देखें, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 3, दिस इज द डिफरेंस ऑफ, लेट मी टेक अ एक्सप्लेन एरर्स, ओके आई सॉल्व इट हेयर ओनली। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इनका डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन हेयर, लाइक 6 एंड 11 के बीच में। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, एंड दीज आर व्हाट, प्राइम नंबर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे ना प्राइम नंबर्स बना रहे हैं 3, 5 एंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर की जो हमारी सीरीज होती है, तो दैट इज व्हाट, 7, राइट। 7 हमारा नेक्स्ट प्राइम सीरीज हो सकता है। तो यहाँ पे 3, 6, 11 एंड देन 18, उनके बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद भी 9 आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है, व्हाट नंबर विल बी द विल फॉलो द गिवन सीरीज ऑफ नंबर 3, 6, 11, तो नेक्स्ट आंसर वुड बी 80, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3, 6, 11, नेक्स्ट क्या होगा, इनका बीच का हमने डिफरेंस देखा, दिस इज 3, दिस इज 5। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या एक पैटर्न बना रहा है, पैटर्न क्या बना रहा है, ये बना रहा है प्राइम नंबर्स का, राइट। तो 3, फिर 5 एंड देन 7, तो ये जो पैटर्न है वो फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे। सो देयर द नेक्स्ट आंसर वुड बी 18, राइट। तो उनके बीच में जो गैप होगा 11 और 18 के बीच में 7 गैप होता है, तो 18 इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको नंबर सिस्टम, जो नंबर एनालॉजी है उसको सॉल्व करा। बट थोड़ा, अगर जिसने लेट्स सपोज मेरी पूरी वीडियो देखी लास्ट वन, तो उसके लिए बहुत इजी और सिंपल हो गया होगा करना अटेम्प्ट। इसीलिए हम ज़्यादा इस नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे, नंबर एनालॉजीज के क्वेश्चन, बिकॉज मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ नंबर सिस्टम पे, तो वो आपके लिए एक बार बार रिविजन हो जाएगी। तो मैं उस चीज़ पे वापस
नहीं जाना चाहता, वो चीज़ आप प्रीवियस वीडियो से देख के कर सकते हो, राइट। मैं एक बार यहाँ पे भी फिर से लिख देता हूँ सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी। सो दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ओके। तो नेक्स्ट वन इज 7, तो यहाँ पे 18 आएगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमने ये तो कवर अप कर लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे लेटर एनालॉजी। ये थोड़ा जो टॉपिक है ये आपने नहीं कवर अप करा था लास्ट में, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट नंबर सिस्टम इन आवर लास्ट वीडियो। इसमें हम बात करें लेटर एनालॉजी। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर एनालॉजी इज सिमिलर टू नंबर एनालॉजी, ओके। द क्वेश्चन जो होते हैं इनके सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर्स है, राइट। Here the questions are based on relationship between two groups of letter on each side of the sign। तो यहाँ पे आपको साइंस के थ्रू, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये कुछ तरीके से ये दोनों सिमिलर होंगे, और ऐसे ही ये इस पैटर्न के थ्रू ये और ये जो नेक्स्ट टर्म है वो भी सिमिलर हो, राइट। तो अब इसको आई थिंक आई शुड नोट इट डाउन, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द टर्म वाई डब्ल्यू जेड एक्स एंड देयर इज यू एस वी टी, यू एस वी टी, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन ऑलरेडी फॉर्म्ड है, और उसके बाद है एम के एन एल, आई होप दिस इज द राइट वन, एम के एन एल, एम के एन एल, और हमें नेक्स्ट फाइंड आउट कर। अब हमें इन दोनों का जो है रिलेशन उसको पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम यहाँ पे एक टर्म जो है नेक्स्ट उस पर डिराइव पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे वाई डब्ल्यू एक्स, तो अगर नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो 26 अगर इनका अल्फ़ाबेटिक्स, अगर आई होप ये सबको पता होगा, योर ए बी सी डी, योर अल्फ़ाबेट्स आर बीइंग अलॉटेड सम न्यूमेरिकल नंबर्स एज वेल। ये इनको एक न्यूमेरिकल नंबर्स भी अलॉटेड होता है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, बेटर देन राइटिंग इन द एग्जामिनेशन। बट लेट सपोज आप थोड़े यू आर वीकर इन दिस एरिया, सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन शीट मिले, बिकॉज आपके पास ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं आपके लेटर एनालॉजी के बेस पे, तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज फास्टली ये सारे आप याद कर, या तो याद कर लो या इनको फटाफट आप लिख दो, ठीक है। आप इन सबको लिख भी सकते हो और वो याद भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा था याद करना का, इज वेरी मच कन्वीनियंट। बट आपको अगर याद नहीं रहते फॉर एनी रीजन, और यू डोंट वांट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी अल्फाबेटिक, कभी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या है क्या नहीं है, टू बी ऑन अ सेफर साइड व्हाट यू कैन डू इज राइट देम डाउन वेरी क्विकली, ठीक है। आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। तो दीज आर सम नंबर्स एंड सो अगर पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे द पैटर्न इज बीइंग डेराइविंग, दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ सेकंड एंड दिस इज काइंड ऑफ थर्ड इन द ऑर्डर। अगर हम इस ऑर्डर में अगर हम देखें, सो द फर्स्ट वन इन द ऑर्डर इज दिस नंबर। लेट्स सी इफ दिस इज ट्रू हेयर एज वेल। So if we talk about STUV, S comes first, S and then T, then U and then V. If the pattern is the same or not. If we give it 1, 2, 3, 4. Okay, yeah. The pattern is same here as well. तो यहाँ पे pattern कैसा follow up हो रहा है? The second digit in this like this arrangement is the first number, like the first स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम देखें, अगर न्यूमेरिकल डिजिट्स में हम इनको अलॉट करते हैं तो इनका जो नंबर्स है वो सबसे कम होता है, द फर्स्ट वन का। फिर उसके बाद जो उनका नेक्स्ट प्रीसीडिंग नंबर है दैट इज कमिंग ऑन द मोस्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है आपका, फिर उनके बाद उनके पीछे उनका थर्ड नंबर आ रहा है, उनके नेक्स्ट आ रहा है उनका फोर्थ, राइट, उनसे आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो K is coming to be the first, KL MN. So here here every like the pattern is same. So the first, second, third and fourth, that is the pattern that is being followed. Let's see and check out in the options which one is following that pattern, right? So if we go through the options, the first, the lowest, if we go by the numerical values, अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका G आता है, right? G एंड सब में जी एक जगह एक ही स्पॉट पे, तो उसके बेसिस पे वी कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शंस। जी के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज एच। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन तीनों में एच आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो पक्का नहीं होगा। जी एच
and the GHIJ, right? This should be the option if you go by that. Oh, okay, just a second. I think वो सब मिट गया. राइट, सो दिस शुड बी लाइक 1 2 3 4, दिस इज हाउ इट शुड बी. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये जो पैटर्न है, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट. तो ये फॉलो अप किस में हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो ये जो पैटर्न जो फॉलो अप हो रहा है वो इसमें हो रहा है कि दिस इज कमिंग टू बी फर्स्ट, राइट. एंड इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड ये आ रहा है, थर्ड ये आता है, और दिस इज द फोर्थ, GHIJ, राइट. अगर हम ABCDEFGHIJKLM की बात करें तो ये वाला पैटर्न फॉलो अप करता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. अगर हमने इनके थ्रू पैटर्न डिराइव करा, पैटर्न पे पहुंचे और उसके बेसिस पे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा IJJH, ठीक है. तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे जो दे रखा है लेटर है, एक जो अरेंजमेंट दे रखी है, उसमें यू नीड टू डिराइव कि कैसे यू कैन रीच टू दिस अल्टीमेट सॉल्यूशन. ओके, now let's talk about this one, the next one, IKMO. Okay, okay, so now this is visible, right. So 1 2 3 4 these are okay. अब let me just rewrite the question again, just a second. IKMO, so this is the first one, IKMO. The second one is QSUW, okay, and then there is YACE, and then we need to find out the next one, right. अगर इफ यू गो बाय द न्यूमेरिक टर्म्स, अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग भी देखें, इसमें GHIJKLMN, राइट. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एक टर्म मिस हो रही है, राइट. अगर आई के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे J मिस हो रहा है, K के बाद देखिए तो यहाँ पे, और यहाँ पे N मिस हो रहा है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक एक टर्म मिस कर रही है टर्म्स अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट. यहाँ पे एक एक टर्म मिस हो रही है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे R मिस हो रहा है, यहाँ पे भी T मिस हो रहा है, यहाँ पे V मिस हो रहा है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक एक टर्म मिस आउट कर रही है, राइट. Y के बाद जैसे जैसे आता है नेक्स्ट टर्म Z, A के बाद आता है B के बाद आता है C के बाद सॉरी आता है आपका D. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एक टर्म मिस आउट हो रही है. दस वॉट आई कैन सी थ्रू दिस अरेंजमेंट, मैंने अरेंजमेंट देखा, मुझे लग रहा था कि काफी सिमिलर टर्म्स पे है. व्हेन आई रोट इट डाउन तो मेरे को लगा कि यहाँ पे एक पैटर्न मिस आउट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक एक जो इनका नेक्स्ट प्रीसीडिंग अल्फाबेट है उसको ये मिस आउट कर रहे हैं, एंड दैट इज बीइंग फॉलोड इन एवरी अरेंजमेंट, ठीक है. तो वही हमारे आंसर में भी होगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए के बाद क्या है, बी स्किप होना चाहिए तो सी आना चाहिए, ओके. तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये तो नहीं आएगा. अब यहाँ पे सी के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए. अब ए के बाद जो है उसका बी स्किप हो गया, सी के बाद जो उसका डी स्किप हो गया, ई के बाद एफ स्किप हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. एक बार ये भी चेक कर लेते हैं. ए के बाद आपका बी स्किप हो गया, सी आ गया, सी के बाद आपका डी आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, हमें स्किप करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, राइट. तो यहाँ पे ACEG आएगा इसका सही आंसर, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म आउट द लेटर एनालॉजी. आपको एनालॉजी बनानी है और उसके बेस पे यू हैव टू, पहले आपने देखा क्या रिलेशन है इनके बीच में, एंड देन यू हैव टू डिराइव द थर्ड रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो एक एक अल्फाबेट को स्किप कर रहा है, एक एक अल्फाबेट को ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज आर लेटर एनालॉजी. आई होप दिस इज क्लियर. और इसमें आपको देखो एक फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले आप तो यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप. सेकेंड ऑप्शन लाइक सेकेंड वे, सेकेंड स्टेप सॉरी. तो आपका सेकेंड स्टेप क्या है, यू नीड टू गो थ्रू ऑप्शंस, यू नीड टू गो थ्रू ऑप्शंस. अब बिना ऑप्शंस आए आप फाइनल आंसर रीच ही नहीं कर पाओगे, राइट. तो यू नीड टू गो थ्रू ऑप्शंस एंड देन यू कैन रीच योर फाइनल आंसर, ओके. सो ये सेकंड स्टेप है, आपको पहले देखना है क्या नहीं है, क्या पैटर्न डिराइव हो रहा है, एंड देन यू रीच आउट टू योर द ऑप्शंस एंड देन यू कैन पिक द राइट वन. तो आपको पहले रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है, उसके बाद यू नीड टू गो थ्रू ऑप्शन एंड देन यू हैव टू पिक द राइट आंसर.
ठीक है, लेटर एनालॉजी। आई होप ये दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफी क्लैरिटी मिली हो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये सारे अल्फा जो न्यूमेरिक्स है, जैसे मैंने बताया ए इज वन, बी इज टू, ये सबको आपको याद करना है, तो अच्छी बात है, याद करने में आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी, दैट इज वर्ड एनालॉजी। ठीक है, हमने अभी दो टाइप्स कवर करे, लेटर और न्यू नंबर एनालॉजी। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ड एनालॉजी पे कंपेयर करना है। तो वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, क्वेश्चन there is a certain relationship between two given words on one side of this and one word is given on the other side। ठीक है, वर्ड एनालॉजी भी वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं। तो हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सेलर और शिप का बीच में क्या रिलेशन होता है जो लॉयर के किसके साथ होगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिक। आपको कितने वर्ड्स पता है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, देखो इसमें बहुत बहुत ज्यादा डिटेल वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती, बहुत बेसिक वोकैबुलरी चाहिए। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइस जो बिल्कुल भी वेरी मच डिसइंटरेस्टेड इन रीडिंग इंग्लिश, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, अगर आपकी बेसिक वोकैबुलरी है, थोड़े आपने क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करे, देन यू कैन डेफिनेटली वर्क दिस वन। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। अब बिना ऑप्शंस के जाए बिना आप नहीं कर सकते उनको सॉल्व। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सेलर है वो शिप को चलाता है, राइट। सेलर जो है शिप को चलाता है, ठीक है, वो शिप का एक पार्ट है, वो एक मेजर पार्ट है जो उसको सेल करने में हेल्प करता है। सिमिलरली लॉयर लीगल को नहीं चलाता, लॉयर लॉ को नहीं चलाता, लॉयर कोर्ट को चलाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका रिलेशन जो मोस्ट एप्ट, जो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली इसका आंसर हो सकता है, दैट इज कोर्ट, राइट। तो सेलर जो है शिप में सेल करता है, वो चलाता है, राइट। बट वाइल वी टॉकिंग अबाउट लॉयर, तो लॉयर भी कोर्ट में होता है, राइट, और उसको रन करता है, ऐसे ना दे लॉयर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कोर्ट प्रीसीडिंग्स, राइट। तो वैसे ही इसका आंसर होगा कोर्ट, राइट। वो लीगल कोई मतलब नहीं बनता, लॉयर लीगल कोई सेंस नहीं बन रहा। लॉयर लॉ मतलब क्या हुआ, लॉयर लॉ तो नहीं चलाता, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एप्टीट्यूड आंसर। सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या है, सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज लव एंड हेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लव का, अगर हेट से अगर हमें एक रिलेशनशिप डिफाइन करना है, सो व्हाट वी कैन से, दिस इज ऑपोजिट ऑफ इट। ओके, अगर हम बात करें तो लव का क्या है, ऑपोजिट है हेट। अब क्रिएट का ऑपोजिट क्या है, लेट मी गो थ्रू ऑप्शंस। मेक, क्रिएट का आपका ऑपोजिट मेक नहीं है। रेनोवेट भी, इट्स सिमिलरली व्हाट यू बी से दैट, आपने फिर क्रिएट कर दिया, रेनोवेट ठीक कर दिया, तो उसमें आप ऑपोजिट नहीं कर रहे हो। डिस्ट्रॉय, उसका एक ऑपोजिट बनता है डिस्ट्रॉय। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर लव का जो ऑपोजिट है, बिकॉज आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, आपको रिलेशनशिप किसका बनाना होता है, फर्स्ट टू का, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इफ दे आर बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो उसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, क्रिएट के जो हमने ऑप्शन देखे, क्रिएट के ऑप्शन, बिकॉज विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस यू कैन नॉट रीच टू अ कंक्लूजन। तो क्रिएट का जो ऑपोजिट है वो डिस्ट्रॉय ही है, क्रिएट का जो ऑपोजिट है वो डिस्ट्रॉय है। सो दैट विल बी द मोस्ट एप्ट राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर हम बाकी सारे ऑप्शन के इफ वी गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस, वी रियलाइज कि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, राइट। क्रिएट का अगर हम देखें तो मेक मतलब सिमिलर ही मीनिंग है, रेनोवेट मतलब उसको आप ठीक कर रहे हो, बिल्डिंग का मतलब भी एक तरीके से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। बट वाइल वी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रॉइंग, यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, तो उसका वो ऑपोजिट होता है, दैट इज योर राइट आंसर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू वर्ड एनालॉजीज क्वेश्चन। और लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। करंट इज रिलेटेड टू एम्पेयर इन द सेम वे एज वेट इज रिलेटेड टू। तो करंट क्या है, एक करंट जो है, सॉरी, एम्पेयर क्या है, एम्पेयर जो है करंट का एक मेजरिंग यूनिट है, राइट। अगर हमें करंट को मेजर करना होता है तो वी यूज एम्पेयर, राइट। तो एम्पेयर जो है एक मेजरिंग यूनिट होती है। वेट के लिए क्या मेजरिंग यूनिट्स होती है, मतलब हम वेट किस चीज में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट्स में मेजर करा जाता है। तो वेट का इनका पहला जो रिलेशन इन्होंने बताया है, लेट मी जस्ट इसको नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। करंट का अगर हम देखें यहाँ पे एम्पेयर, ठीक है,
तो दिस इज द रिलेशनशिप जो हमें डिफाइन करा गया, तो इसको एक मेजरिंग यूनिट बोल सकते हैं, एक मेजरिंग यूनिट है। अगर हम बात करते हैं वेट की, वेट का क्या मेजरिंग यूनिट हो सकती है, तो अगर आपने देखा होगा कि आप किस तरीके से अपना वेट मेजर कर सकते हैं, किस मेजरमेंट यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे, मेजरमेंट तो नहीं हो सकता, कमोडिटी भी नहीं हो सकता, स्केल भी कुछ नहीं लग रहा, पाउंड, राइट। हमारे एक्चुअली इंडिया में वी यूज किलोग्राम्स, लाइक समवन इज वेटेड 60 kgs, बट बेसिकली बाहर इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज तो वहां पे दे यूज पाउंड्स, राइट। तो एलबीएस और पाउंड्स का यूज करते हैं फॉर वेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेजरिंग यूनिट्स बोले तो इंडिया में व्हाट वी यूज इज किलोग्राम्स, बट फॉर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पाउंड वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज पाउंड यूज करा जाता है, पाउंड और एलबीएस आपका यूज करा जाता है इन फॉरेन कंट्रीज, दैट इज अ मेजरिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा करंट क्या है, एम्पियर क्या है, मेजरिंग यूनिट है करंट का। सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर आपको किसी का वेट करना है कि कितना वेट है, आई विल चेक इन किलोग्राम्स, राइट, विल टेल देम कि हाँ 60 किलोग्राम से 50 किलोग्राम से, या पाउंड में आई थिंक 2.2 होता है, 1 किलोग्राम इज 2.2 पाउंड, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, उसके आसपास का ही टर्म उतना ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यू मेजर, तो अगर आप लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 60 kg, तो वहाँ पे दैट वुड बी अराउंड 120 पाउंड समथिंग, राइट, तो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही दीज आर मेजरिंग यूनिट्स, ओके। तो ऐसे ही करंट इज रिलेटेड टू एम्पेयर इन द सेम वे एज वेट इज रिलेटेड टू हमारा पाउंड, इज विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम मेजरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिश इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे एज बर्ड इज रिलेटेड टू। फिश की अगर हम बात करें, फिश का क्या है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट ही वाटर में, फिश का, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे, फिश की हम बात कर रहे थे, फिश का क्या है, आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है उसकी लाइफ जो है वो वाटर में ही है, राइट, पूरी तरह पानी में ही होती है। तो अगर हम बात करें, हमें बात करनी है बर्ड की, बर्ड का इकोसिस्टम, वेयर दे यूजुअली आर, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो उस चीज़ को हमें देखना है। वाटर में तो नहीं रह सकते, वो तो फिश स्केल है। um, यहाँ पे अगर आप देखो फूड का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, मतलब यहाँ पे फिश की अगर हम बात कर रहे तो वहाँ पे खाना के बारे में हम बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे क्या है। बर्ड इज रिलेटेड टू, अगर हम बात करें तो एयर, एयर वुड बी द राइट आंसर, स्काई वुड एज इन मीन कि हम हवा की बात कर रहे हैं, बट बर्ड्स ऑल्सो कैन स्टे डाउन ऑन, अगर हम देखें तो वो हमेशा पूरी टाइम उड़ते ही नहीं रहते, राइट, दे ऑल्सो नीड एयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिश इज रिलेटेड टू वाटर, तो यहाँ पे एयर आएगा इसका आंसर, राइट। तो बर्ड वैसे एयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे वर्ड एनालॉजीज पे बेस्ड है। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। व्हाट व्हाट आई वुड से इन द, आपके लिए जो मेरी एडवाइस होगी, फर्स्टली यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये जो हम अभी हमने सॉल्व करे ये क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वर्ड एनालॉजीज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप मिलेंगे। तो वो कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन बिकम बेटर ऑन दिस इज वाइल प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत तो यू कैन इजीली क्रैक दोज क्वेश्चंस, राइट। तो प्रैक्टिस करना है लॉट ऑफ क्वेश्चंस वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट। जो हमारे लेटर एनालॉजी था, लेटर एनालॉजी में व्हाट यू कैन डू इज रिमेंबर ऑल अल्फा न्यूमेरिक्स, राइट। तो अगर आपको सबके याद हो जाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल A1 B2 C3 ऐसे याद होने चाहिए। तो इसमें एक रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो अप करा जाता है, जिसमें हम कभी कभार Z से स्टार्ट कर लेते हैं, Z को 1 काउंट करते हैं। देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें हम Z को 1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नहीं आ पाएगा। तो दैट इज वेयर इन सच केसेस Z वी टुक Z एज 1, राइट, Y एज 2, ऐसे रिवर्स चलने लग जाता है, ठीक है। तो उसमें A26 हो जाएगा। तो ऐसे रिवर्स भी पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये मैंने अभी इसलिए बताया बिकॉज आप वैसे सोचोगे तभी आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एक आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ भी पॉसिबल है कि हम Z को भी हम 1 से काउंट कर सकते हैं। और ये जो हमें थर्ड जो हमने अभी लास्ट वर्ड एनालॉजी करी,
इसमें जितने रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, इसमें रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो PYQ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कर ही लेना। वो उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड देयर आर चांसेस दैट दे कैन बी आस्क्ड अगेन। और लास्ट है आपका नंबर। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज जाके नंबर एनालॉजी जो नंबर सिस्टम पे, वो वीडियो देख लेना। उसके बाद आपको जो भी नंबर एनालॉजी में प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, सब सॉल्व हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लास्ट वन, राइट? So the moment that you all were waiting for, as I said, कि there is some added, a discovery for you, all of you that who are joining us for the first time. आपके लिए, because what is this? This is kind of ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं ना, this is a ब्रह्मास्त्र. This is an UGC NET essential which is covering each and every topic of your logical reasoning. Indian logical reasoning भी है, आपकी logical reasoning भी है, प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू आर गेटिंग दिस फॉर फ्री। आपको ये फ्री में मिल रहा है, राइट? तो आपको ऐसे कुछ पे नहीं करना, यू आर गेटिंग दिस थिंग फॉर फ्री, जस्ट फ्री, राइट? तो फ्री में अगर कुछ मिल रहा है, सो व्हाई नॉट गेट दैट, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873 907600। व्हाट्सएप आपको यहाँ पे करना है, एंड देन यू कैन इजीली क्लेम योर एसेंशियल ई बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप विल मिस आउट ऑन इट। आप कितनी वीडियोस देख लोगे, कितना कवर अप कर लोगे? हर कोई बोलेगा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू एसेंशियल्स। तो ये चीज़ आप क्लेम कर सकते हो, बस यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गेट अ स्टेप अहेड। मैं तो यही बोलूंगा, गेट अ स्टेप अहेड इन योर प्रिपरेशंस। आप पीछे मत रहो, आगे बढ़ो। गेट अ स्टेप अहेड इन योर प्रिपरेशंस, एंड दैट दिस इज हाउ यू कैन डू इट, राइट? बाद में मत बोलना जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। आई एम गिविंग यू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिस इज नथिंग एल्स बट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हाउ यू कैन कवर योर लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार बता दूं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट यू कैन डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर से। आपको फ्री में मिल जाएगी। उस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइक लास्ट 10 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा। तो उसमें आप व्हाट यू कैन डू इज अटेम्प्ट want if you want to test your mental, if you want to test yourself कि अगर हाँ मेरे को प्रिपरेशन चेक करनी है, और इस टाइम पे, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज जस्ट अ मंथ अवे, ठीक है? तो आज इस टाइम के अराउंड आपको तो प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, हर हफ्ते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चेक व्हाट आर योर वीकर सेक्शन, चेक विच आर योर स्ट्रॉन्गर सेक्शंस, एंड देन प्रोसीड हेड अकॉर्डिंगली। क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ को रिवाइज करना है, उन पे फोकस करना है, और देन यू कैन डेफिनेटली गेट योर JRF। जो आपका ड्रीम है वो हो जाएगा पॉसिबल। वो अचीव कैसे कर पाओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप यू डोंट नो वेयर, बिकॉज बच्चों को क्या प्रॉब्लम, क्या सोर्सेज नहीं पता। सोर्सेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से ऐप, एंड देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट ऑल दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये भी नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद देयर इज, लेट सपोज यू वेंट रॉन्ग, राइट? तो वहाँ पे एक लॉजिकल रीजन भी दे रखा है, उस चीज़ को आंसर कैसे करना है, क्या उसका आंसर है, वो भी आपको प्रोवाइडेड है। एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, लाइक, subscribe and share this video with your friends as well, so that they also get the benefits of free essentials and free claim and this Talent Blazer app as well. ठीक है? So thank you all for joining, and make sure that you join with me in the next class as well. So we'll meet in the next video.